پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ یہوہ پاک خداوند کے نام میں، جس کا نام سب ناموں سے افضل اور اعلی ہے اور مقدس ترین نام ہے، اور مسیح خداوند میں میرا اور تمام مسیحی مومنین کا پتا بھی ہے، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں آج کے اس خوبصورت سما کے لیے جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے کہ ہم پرستش کے وسیلہ سے برکت پائیں اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے بھی باہم مل کر برکت پانے والے ہوں۔ آپ سب جو ہمارے ساتھ اس اسکائپ آئی ڈی پر موجود ہیں، اور آپ سب جو ہمارے ساتھ فیس بک کے متعدد پیجز پر شریک ہیں، میری دعا ہے کہ خداوند آج اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو بہتری برکت دے، اور اس کلام کے قبول کرنے کے وسیلہ سے میرے اور آپ کے ایمان مضبوط ہو سکے۔ آمین۔ کتاب مقدس سے ہم زبور کی کتاب میں سے زبور 130 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پہلی 3 آیات پر خداوند کے خادم نے گزرے کل بات کی تھی۔ چونکہ آپ میں سے کئی نئے چہرے ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے میں یہ عرض کرتا چلوں مختصر طور پر، اور وہ یہ کہ یہ زبور 130 اس سیریز کا، اس سلسلے کا جو 15 مزامیر میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ان 15 مزامیر میں سے 11ویں نمبر پر ہے۔ یہ 15 مزامیر وہ ہیں جو اسینٹ یعنی اوپر ہیکل کی طرف جاتے ہوئے اسرائیلی زائرین لاویوں کی قیادت میں سٹیپ بائی سٹیپ ہیکل کے پھاٹک پر جب جاتے اور کارواں کی صورت میں، جماعت کی صورت میں، ٹولیوں کی صورت میں جب خداوند کے حضور جاتے تو یہ مزامیر گایا کرتے تھے۔ اور علماء کہتے ہیں کہ نیچے سے اوپر تک تقریباً 15 سیڑھیاں یعنی سٹیپس تھے، اور یہ 15 مزامیر یکے بعد دیگرے سٹیپ بائی سٹیپ اوپر جاتے ہوئے گایا کرتے تھے۔ ہم اس 130 زبور میں زبور نویس کو یوں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں کے اعتبار سے اور اپنی قوم کو بھی انتہائی گہراؤں میں پاتا ہے، انتہائی پستی میں، انتہائی گرا ہوا اپنے آپ کو محسوس کرتا اور فیل کرتا ہے، اور پھر خداوند پر اس کا اعتماد اور بھروسہ ہے کہ معافی خداوند کی طرف سے ہے اور بحال خداوند کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے بھی زبور ہے کہ میں اور آپ بھی خداوند اپنے خدا پر بھروسہ کریں۔ یہ اس کی گواہی ہے کہ خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی، اے خداوند میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہیں، اور اے خداوند اگر تو بدکاری کو حساب میں لائے تو اے خداوند کون قائم
रह सकेगा। ये शख्सी तौर पर जो वो अपने आप में महसूस करता था, उसका इजहार वो खुदावंद के हुजूर करता है। यानी गुनाह से खबरदार होने की अपने आप के लिए उसकी खबरदारी थी, और फिर वो मुझे और आपको भी ये तहरीक देता है कि हम अपने पाप और अपने गुनाह से खबरदार और आगाह रहें, क्योंकि खुदावंद पर भरोसा करने से मुआफी के दरिया बहना शुरू हो जाते हैं। मसीही रवायात के मुताबिक यूं कहा जाता है कि तकरीबन 7 ऐसे मजामीर हैं, 150 मजामीर में 7 ऐसे मजामीर हैं जिनमें इसी तरह का मजमून पाया जाता है इकरार गुनाह और मुआफी के ताल्लुक से। इनमें जबूर 6 है, जबूर 32 है, 38 है, 51 यानी 51, 102 जबूर, 130 जबूर और 143 जबूर। ये 7 मजामीर तकरीबन एक ही तरह की बात को पेश करते हैं, और यह जबूर उन सब के लिए तसल्ली का सबब है जो इंतहाई मायूसी के आलम में है। इंतहाई मायूसी के आलम में जब वो कहता है कि मैंने गहराओं में से तेरे हुजूर फरियाद की, तो यहां पर गहराओं से मुराद यह नहीं है कि वो कहीं कुएं की तह में पड़ा हुआ था या किसी दहलवान में वो था, किसी निचली जगह पर था। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने आप की बाबत यूं महसूस करता है कि मैं अपने गुनाह के एतबार से गहरी मायूसी और खतरे के आलम में हूं। इस तौर पर देखिए, जो मसीही मोमिनीन हैं, जब उनसे गुनाह हो जाए, करे नहीं लेकिन हो जाए, तो जो खुदा के लोग हैं, खुदा का रूह उनमें ये तहरीक पैदा करता है, खुदा का रूह उन पर जाहिर करता है, जो तूने कहा और जो तूने सोचा और जो तूने किया, ये गलत था। और फिर खुदा के लोग खुदावंद के हुजूर 1 यूहन्ना 1:9 के मुताबिक इकरार करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, और खुदा उनको उनके गुनाहों से पाक करता है, बशर्ते के खुदा के हुजूर ये जो इकरार है, अलहदगी में, खामोशी में, आंसुओं के साथ, शिकस्ता दिल होकर, टूटे हुए दिल के साथ ये इकरार किया जाए, तो किसी के कहने पर नहीं। जब अलग से खुदा मुझे इस बात को जाहिर करे, मैं इस कर्ज को खुदावंद के हुजूर चुकाने वाला हूं। और जबूर नवीस अपने गुनाह के भयानक होने के एतबार से अपने आप को इंतहाई गहराओं में और पस्ती में पाता है। और मेरे अजीजों, याद रखिए कि कीमती तरीन मोती
समुंदर की गहराई में ही होते हैं, और जब तक गहरे में उतरकर उन मोतियों की तलाश न करें, तब तक हम उन मोतियों को हासिल नहीं कर सकते। जो इंतहाई पस्ती में अपने किए और कहे पर और सोचे जाने पर, अपने ख्याल पर मातम करते हैं, अपने आप को इंतहाई पस्त करते हैं, खुदा उनके दिलों के मुवाफिक और उनकी नीयतों के मुताबिक उनकी राहों को हमवार करता है। कब? जब मुसरफ था तो वो बेटा ही, मैं और आप भी बेटे और बेटियां हैं। जब मुसरफ इंतहाई पस्ती में जब सुअरों की फलियां खा रहा हो, रूहानी तौर पर अपने आप को नंगा पा रहा हो, कोई रास्तबाजी बसी हुई ना हो, फिर वो खुदा बाप के हुजूर जाने के लिए इरादा करता है और फिर जाता भी है, तो खुदा बाप उसको बगलगीर होता है और उसके लिए जियाफत बुलाता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, मैं और आप खुदा नहीं है। बाज लोग ये कहते हैं, ओ जी असी केड़ा फरिश्ते हैं। नहीं, मैं फरिश्तों से तशबीह नहीं दूंगा, क्योंकि उनसे भी कुछ हुआ ही था, आप जानते हैं। पाक है तो एक ही है जो खुदा है, और मैं ये कहूंगा, मैं और आप खुदा नहीं है। हम वो गुनाहगार हैं, सुन रहे, जो खुदा के फजल से बचे हैं। दैट्स ऑल। और बाज औकात अक्सर मुझसे भी, और आपके बारे में मैं नहीं जानता, आप अपने आप को खुद बता सकते हैं, पॉसिबल है कि आपसे भी कोई पाप हो जाता हो। करने की बात नहीं है, हो जाने की बात है। और जब हो जाए, अपने आप को खुदा के हुजूर इंतहाई नंगा और बेबस महसूस करें और उसकी मुआफी पर तवक्कल करें, तो हमारा खुदा हमें बचाता और हमें छुड़ाता है और मुआफ करता और बहाल करता है अपने पहले वाले मकाम पर। इस ज़बूर में यहोवा और एदोनाई के अल्फाज मुतअद्दिद मकामात पर असल टेक्स्ट मतन में इस्तेमाल हुए हैं। यानी ए खुदावन, यहोवा, एदोनाई, और फिर वो अपने पाप का इकरार करता है और वो बयान करता है कौन है, ए खुदावन कौन है, ए यहोवा पाक कौन है जो आपके हुजूर खड़ा होकर ये कह सके कि मैं बिल्कुल पाक हूं। और कौन है जो खुदा के हुजूर उसका अगर निखेड़ा किया जाए, लेखा किया जाए, हिसाब किया जाए, तो वो शख्स अपने आप में मुकम्मल तौर पर पाकीज़गी महसूस करे कौन है। इसीलिए तो बहन ने यह ज़बूर गाया भी, जे तू साडे गुनाहां दा करे हिसाब, कौन जो तेनू खलो के दे सकदा जवाब। और यह बात बिल्कुल सच और हक पर मबनी है। और शायद आज सुबह से लेकर इस वक्त तक हमसे पता नहीं कौलन फेलन इरादतन
और गैर इरादी तौर पर भी कई गुनाह और पाप हुए होंगे। केवल इसके कि हम बेड पर जाएं, हम खुदावंद के हुजूर इस मुआफी के लिए खुदावंद के हुजूर झुके और फिर उन राहों पर ना जाएं जिन राहों पर चलकर हमने खुदा के रूह को रंजीदा किया है। अगर हमारे गुनाह कोई मुआफ कर सकता है, कोई पादरी नहीं, कोई लीडर कलीसाई तौर पर नहीं, अगर कोई मुआफ कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ खुदावन हमारा खुदा, सिर्फ खुदा ही है जो ऐसा कर सकता है। इसके लिए मुआफी के लिए उसी के हुजूर जाने की जरूरत है। जब मैं आपके खिलाफ कुछ करता हूं तो मुझे आपसे मुआफी मांगने की जरूरत है, प्लस खुदा से भी, क्योंकि जब मैंने आपका गुनाह किया तो मैंने खुदा का भी किया है कि नहीं। दो तरफा है और मुझे आपसे भी और उससे भी मुआफी तलब करने की जरूरत है। जब हम आयत 4 जो हमारा मतन है इस पर चलते हैं तो जबूर नवीस कहता है, पर मगफरत तेरे हाथ में है ताकि लोग तुझसे डरें। मगफरत यानी तू गफ्फार है, मुआफ करने वाला, और मुआफी का लिबास पहनाने वाला तू है। क्यों सिर्फ तू ही है? देखिए यहां पर इस चौथी आयत के पहले हिस्से ने जबूर नवीस ने यह नहीं कहा, हां खुदावन मगफरत तो तेरे हाथ में है, लेकिन वो फलां के हाथ में भी है, फलां के हाथ में भी है, चल तेरे पास तो आना जरा थोड़ा मुश्किल है लेकिन मैं उसके पास चला जाता हूं। नो, यहां पर यही हकीकत हम देखते हैं कि मुआफी और मगफरत सिर्फ और सिर्फ खुदा के पास है। यह खुदा का कलाम कहता है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं, इससे बाहर की कोई बात नहीं कर रहा। और फिर आगे लिखा है, इसलिए मुआफी का काम ए यहोवा खुदा आपने अपने ताई रखा है ताकि लोग इंसानों का नहीं आपका डर महसूस करें, यानी आपके लिए उनके दिल में ताजीम हो, एहतराम हो, अदब हो, कि एक खास पहलू के एतबार से आपके लिए उनके दिल में इज्जत हो। यह डर रखना से मुराद वो वाला डर नहीं जो शायद गैर मसीही लोग महसूस करते हैं। मसीह यस्सु में खुदा बाप जो यहोवा है, मसीह यस्सु में अब मेरा और आपका आसमानी पिता भी है। इसलिए लाजिम है कि हम उसके प्यार और उसकी शफकत से महजूज होने वाले हों। खुदा के कलाम के मुताबिक यह एक अहम तरीन सच्चाई है। पर मगफरत ए खुदाबंद सिर्फ और सिर्फ मुआफी सिर्फ तेरे पास है। और जब खुदा मुआफ करता है ना, मैं ये बताना चाह रहा हूं, उसने खुद फरमाया कि मैं तेरे गुनाहों को घटा की मानिद दूर कर देता हूं, और जैसे पूरब से पश्चिम है वैसे ही मैं तेरे गुनाहों को मिटा देता हूं। वो हमारे गुनाहों को खाक किरमजी ही क्यों ना हो, बर्फ की मानिंद सफेद बना देता है, पाकीज़गी का लिबास पहनाता है, गहरे समुंदर में डाल देता है कि फिर उन पर निगाह नहीं करता। लेकिन शर्त यह है, जैसे पहले कह चुका हूं,
इंतहाई आजिजी और इनकिसारी से आंसुओं के साथ खुदा के हुजूर इकरार किया जाए। क्यों? इसलिए कि खुदा हमारे लिप्स, हमारे होंठों की आवाज, हमारी जबान, हमारे मुंह की आवाज से कहीं ज्यादा हमारे दिल की आवाज को सुनना चाहता है। और जब वो मुआफ करता है तो एक आलम ने यूं कहा कि जैसे सर्जन शोबाए तिब वाले कैंसर वाली जगह को रिमूव कर देते हैं ना, ट्यूमर को रिमूव कर देते हैं, बाएन वैसे ही खुदा फिर उस गुनाह के ट्यूमर को हमारी जिंदगी से दूर कर देता और मुआफ कर देता है, ऐसे कि जैसे वो वहां पर था ही नहीं। और हम इसके बारे में रसूलों के अकीदा में भी पढ़ते हैं, और गुनाहों की मुआफी पर, यानी मैं ईमान रखता हूं, ये एक डेल, ये एक हिस्सा है रसूलों के अकीदा का, और ये खुदा बाप के हुजूर इकरार होता है, और गुनाहों की मुआफी पर, यानी मेरा ईमान है। ये एक अहम सच्चाई है। तो खुदा खा कैसा ही गुनाह क्यों ना हो मुआफ करता है, मगर मैंने पहले कहा कि किस तरह का रवैया और मिजाज या एटीट्यूड खुदा के हुजूर मुआफी के लिए होना चाहिए। और फिर जो लोग मुआफी याफ्ता होते हैं ना, और उनका कोलो फेल बदल जाता है, उनका तकिया कलाम बदल जाता है, उनकी सोचें बदल जाती है, उनके चाल ढाल बदल जाती है। होते तो इसी जमीन पर, पांव यहां ही होते हैं, लेकिन वो बाकी दुनिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। इंतहाई नरम मजाज, हलीम और फरोतन, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरे गुनाह का कर्ज किसी ने उतार दिया है, और अब मैं दोबारा से कर्ज का अंबार ना लगाऊं कि फिर मैं हैबिचुअल यानी आदी हो जाऊं। गुनाह के हो जाने पर हमें अपने आप में गमज़दा और रंजीदा और परेशान होना लाजिम है। और हम में से वो जो अपने आप को खुदा के ज्यादा करीब पाते हैं, आपने बजाते खुद इस बात को महसूस किया होगा कि जब कभी हमसे हो जाए, उसके बाद हमें चैन नहीं मिलता जब तक कि खुदावंद के हुजूर उसका इकरार ना किया जाए। एक आलम जब मैं स्टडी कर रहा था तो अपनी बात यूं कर रहे थे कि शरीयत मूसवी के मुताबिक बात करते हुए वो यूं कह रहे थे कि इंसानी हयात कुछ ऐसी है कि वो उस बर्फ के एक ब्लॉक की मानिंद है कि शरीयत के हथौड़े से उसे तोड़ने के बावजूद वो जमी हुई बर्फ यानी आइस ही रहती है। लेकिन जब इलाही मोहब्बत
اور روح کی آگ کے اور خدا کی محبت کے شعلے اس پر پڑتے ہیں تو وہ نہ صرف پگھل کر ختم ہو جاتی بلکہ وہ پانی میں منتقل ہو جاتی ہے۔ زبور نویس کہتے ہیں اگر تو میرے گناہوں کا حساب کرے تو کون تیرے حضور کھڑا رہے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ لیکن دوسری طرف الہی محبت کا اظہار یہ ہے کہ میں نے اور آپ نے خود کچھ راستی کا کام کیا نہیں تھا نہ راستی کے سوا، اور کوئی راست باز عرش سے فرش پر آ گیا کہ میں اور آپ اس کے وسیلہ سے راست ٹھہرے۔ یہ بہت بڑی اور گہری بات ہے۔ آیت 5 اور آیت 6 لکھا ہے، میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ زبور نویس خدا کی طرف سے قومی لیول پر بھی معافی اور رہائی کا منتظر ہے، یعنی انتظار کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اے خدا مجھے تیرے کلام پر بھروسہ ہے، یقین ہے، کیونکہ تیرے کلام میں تیرے وعدے ہیں جو تو کبھی بھولتا نہیں ہے۔ مجھے تیرے کلام پر اعتماد ہے، میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے، کیونکہ مجھے خدا کے کلام، خدا کی باتوں پر، خدا کی شریعت پر، خدا کے آئین پر بھروسہ ہے اور اعتماد ہے۔ اور جب وہ کہتا ہے نا صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے، تو یہاں پر ایک پکچر پیش کرتا ہے۔ یہاں پر کوئی تصویر بنی ہوئی نہیں ہے، لیکن الفاظ کے لحاظ سے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک پکچر سی پیش کرتا ہے، صبح پو پھٹنے یا صبح کا ستارہ نمودار ہونے کی انتظار کرنے والے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہاں پر گویا جیسے کوئی چوکی دار ہوتا ہے نا، اور وہ پوری رات صبح کا انتظار کرتا ہے۔ اور زبور میں بہن نے گایا کیا، جے میں پیرے والا ویکھدائے فجر دی راہ۔ یہ منتظر وہ رات کو پہرا دینے والا چوکیدار کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جیسے وہ صبح کی انتظار کرتا ہے، یا فوجی جو پہرا دیتے ہیں صبح کا انتظار کرتے ہیں شفٹ کی تبدیلی کی، یا شاید یہ اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جو اہل یہود صبح کی قربانی گزرانا کرتے تھے خانہ خدا میں، انتظار کرتے ہوئے ہوں رات کا کہ صبح ہو تو جا کر قربانی چڑھائی جائے، کہ کب صبح ہوگی کہ میں جاؤں اور خداوند کے حضور جا کر اپنی قربانی گزرانوں۔ However، یہ جو کچھ بھی امیج یہاں پر پیش کی گئی ہے ایک ایسے شخص کی جو منتظر ہے، انتظار کرتا ہے
सुबह की। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रूहानी तौर पर इससे आज मेरे लिए और आपके लिए सबक यह निकलता है कि वो तारीकी जो गुनाह के अब्रे स्याह के सबब से इस कुर्राए अर्ज पर छाई हुई थी, लगभग 2000 साल पेशतर अर्शे अजीम से आफताबे सदाकत इस जमीन पर आ गया ताकि तारीकी को दूर करे और नूर और उजाला आ जाए। उसने यह दावा किया जो किसी और ने नहीं किया, दुनिया का नूर मैं हूं। और फिर अपने पैरोकारों से उस वक्त भी और आज भी मुनज्जी यही बात कर रहे हैं कि अब तुम दुनिया के नूर हो। हम अब मजीद तारीकी के नहीं। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आप जो इस कलाम को सुनते हैं, अगर महसूस करते हैं कि ओ गुनाह के एतबार से मैं अभी तक तारीक वादियों में गुम हूं, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, मायूसियों ने मेरा दरवाजा देख लिया है, अच्छे दिन फेरते नहीं है, तो फिर लाजिम है अपने आप को टटोला जाए कि मुझ में कौन सी कमी है कि अभी तक सुबह की इंतजार करता हूं, लेकिन वो पो नहीं फटी। और ये पॉसिबल है बहुत सारी वजूह में से एक कि इस सुबह के ताले ना होने के पीछे, तुलू ना होने के पीछे मेरा और आपका गुनाह हो, जिस सबब से हम इंतहाई गहरी खाई में हैं। और इकरार करने और खुदावंद की तरफ रुजू लाने की जरूरत है। ज़बूर नवीस अपनी और पूरी कौम की रिहाई के लिए दुआ करके खुदावंद के हुजूर जवाब के लिए इंतजार करता था कि मुआफी और बहाली मिले। अब 7वीं और 8वीं जो आखिरी 2 आयात है, ए इस्राइल खुदावंद पर एतमाद कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसी के हाथ में फिदिया की कसरत है, और वही इस्राइल का फिदिया देकर उसको सारी बदकारी से छुड़ाएगा। हालेलुया, आमीन। इस मतन यानी इन 2 आयात के मुताबिक हम इस बात को जानें कि ज़बूर नवीस सिर्फ अपनी जात की बात नहीं करता इनफरादी तौर पर अपने बारे में, बल्कि वो पूरी कौम इस्राइल के बिहाफ पर भी बोलता है। वो खुद ये कहता है कि ए खुदावंद, ए इस्राइल खुदावंद पर भरोसा कर, तकिया कर, क्योंकि खुदावंद के हाथ में शफकत है, उसकी तरफ रुजू लाओ, उसके हाथ में फिदिया की कसरत है, और वही इस्राइल का फिदिया देकर उसको उसकी बदकारी से छुड़ाएगा। देखिए, मुआफी हासिल करना, मैं सोचता हूं यह वक्ती तौर पर आसान होगा, अगरचे बहुत मुश्किल भी है, लेकिन वक्ती तौर पर अपने गुनाह से मुआफी पाना
ये शायद किसी हद तक हमें आसान लगे, लेकिन पॉसिबल है कि नहलाई हुई सुअरनी फिर से दलदल की तरफ और कुत्ता अपनी कैं की तरफ जाए। इसलिए मैं यूं कहूंगा कि मुआफी के लिए सिर्फ पानी का हासिल करना या समझाने के लिए और समझने के लिए कि प्यास के बुझाने के लिए सिर्फ पानी हासिल करना काफी नहीं है। कुएं पर जाकर बैठना मेरे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है चश्मा के पास। और आबे हयात का चश्मा एक ही है, चश्मे नहीं है, और वो मेरा और आपका निजात दहंदा खुदावंद यीशु मसीह है। और जबूर नबीस यहां पर इसराइल को भी एक उम्मीद दिलाता है कि इसराइल का फिदिया और इसराइल की रिहाई होगी। यहोवा खुदा खुद जो यहोवा यरी है मुहैया करेगा फिदिया, और यूं इसराइल भी खुदा की तरफ रुजू लाएगा। जैसे पहले कहा, लगभग 2000 साल हो चुके हैं कि वो फिदिया ऑलरेडी खुदा ने मुहैया कर दिया है। बहुत सारे इस्राएली उस फिदिया पर ईमान लाकर अब मसीह में हैं, और बहुत सारे अभी नहीं। और सिर्फ इस्राएल की बात नहीं, गैर कौम में से भी मेरे भाई और मेरी बहन, अगर आप भी मसीही नहीं हैं तो ये इंतजाम मुआफी का आपके लिए भी है। खुदा के इरादा में आप भी हैं, खुदा की मोहब्बत आपके लिए भी है। लेकिन अहम तरीन बात यहां पर यह है कि उस फिदिये को अपनी जात के लिए कबूल किया जाए और अपनी मुआफी को हासिल किया जाए। आपका कर्ज सलीबे कलवरी पर चुका दिया गया। लाजिम है कि हम उस फिदिया को अपने आप के लिए कबूल करें, ताकि हम मसीह के मुताबिक, उसकी तालीम के मुताबिक अपना जीवन बसर करने वाले हों। हम खुदा का शुक्र अदा करें जो हमारे पापों को मुआफ करता और इस दस्तावेज को मिटा डालता है। शुक्र हो कि आज भी मुआफी का चश्मा बहता है। शुक्र हो कि आज भी वो हमें गले लगाने के लिए तैयार है, भले हम कैसे ही क्यों नहीं। बुला रहा है, मेरे पास आ जा, क्योंकि मैंने तेरा फिदिया दिया है। और वो वक्त दूर नहीं कि अगर आज नहीं तो कल आपने अपने घुटने उसके हुजूर झुकाने ही हैं खुदा के कलाम के मुताबिक, और आपकी जबान ये इकरार करेगी कि यीशु मसीह खुदावन है। और मेरी दुआ है खुदा करे कि वो वक्त आपकी जिंदगी में आए। आज के लिए इतना ही काफी, छोटी सी मुख्तसर सी मैं दुआ के साथ इख्तिताम करूंगा। ए कादरे मुतलिक आसमानी पिता, ममनून है इस कलाम के लिए जिस पर हमारा भरोसा और एतमाद है, जो हमें आपकी शख्सियत और जात से मुताल्लिक आगाह करता है कि आप किस कदर शफीक, रहम करने वाले, मेहरबान और गफ्फार खुदाबंद है। ए खुदाबंद, हम आज के दिन की हर गलती, खता, गुनाह का आपके हुजूर इकरार करते हैं। ए बाप, अपने बेटे
یسوع مسیح ناصری کے نام سے ہمیں معاف کیجیے۔ اور اگر میرے سامعین اور ناظرین میں کوئی ایسا یا ایسی ہے جنہوں نے ابھی تک اپنا جیون آپ کے نام نہیں کیا، وہ کھوئی ہوئی بھیڑ کی طرح ہے، اے پاک روح ان کی زندگی میں کام کیجئے، تبدیل کیجئے، مولڈ کیجئے انہیں کہ وہ آپ کی طرف رجوع لائیں اور یوں گناہوں کی معافی اور ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ میرے وہ تمام اقربا جو فیس بک یا یوٹیوب پر اس کلام کو سنتے اور دیکھتے ہیں، خواہ واٹس ایپ پہ، ان سب کے لیے میں آپ کی برکت اور سلامتی چاہتا ہوں۔ ہر بیماری کی لعنت، ٹینشن اور مایوسی کی لعنت یسوع مسیح ناصری کے نام سے مکمل طور پر جاتی رہے، اور آپ کے لوگ سکھ اور چین پا کر آپ کے کلام پر معافی کے لیے بھروسہ کرنے والے ہوں۔ سنیے ہماری دعا اور شکر گزاری کو اور قبول کیجیے مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔ خداوند آپ سب کو آج اس پاک کلام کے وسیلہ سے برکت بخشیں۔ پھر ملیں گے جب خداوند کی مرضی ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔